Hello students, once again I welcome you all in this video, and this video is for class 10th subject biology chapter 2. Okay, and dear students, this is the fresh chapter after the session break. Okay, and name is control and coordination. Control and coordination. So first thing comes in our mind that what is the meaning of the control and coordination. Okay, because this is the name of the chapter. So control, who controls our body? Our brain. It has been only taught you all from class, I can say 1 2. Okay, and that is because of because of the nervous system, and nervous system is composed of nerve cell, and nervous system is composed of नर्व सेल. ये नर्व सेल का ही क्या बना होता है? ब्रेन. ओके, और बॉडी को पूरा कंट्रोल करना किसका काम होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का. ओके, बट स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग इज एनफ, बट नेक्स्ट थिंग इज द मेकिंग यू कैन से coordination among the different kind of body organ system. बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. These are also system, and among these there must be a coordination. इन सबके बीच क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो our body is not functioning properly. For example, suppose someone heartbeat gets increased. heartbeat क्या होती है? बढ़ जाती है. लेकिन अब आप ये समझो कि अगर हार्टबीट ना बढ़े, suppose you are running, you are in danger, then there is a problem. So there is a coordination between the brain and the circulatory system. Brain and the circulatory system. Brain means nervous system. Nervous system और आपके जो होता है ना हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में ही तो हार्ट होता है बच्चों. दोनों बीच क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन. After eating the food is there in the stomach, and stomach needs more energy to secrete the digestive juices, enzymes we can say. वहाँ पे ज़्यादा ब्लड चाहिए तो ब्रेन सेंड्स द सिग्नल. ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ आता है? एलिमेंट्री कैनाल में तब जाता है. सो दीज आर द कोऑर्डिनेटेड फंक्शन. सो कंट्रोलिंग इज डन बाय ओनली ब्रेन, एंड कोऑर्डिनेशन आल्सो डन बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दोनों मिलके ही करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ओके, एंड वन मोर थिंग, इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग दैट स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रेन. 31 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की होती है. 31 सेंटीमीटर लंबी एक हमारे बॉडी में क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड भी होती है. ओके, वी विल डिस्कस लेटर इट इन दिस चैप्टर ओनली इन द कमिंग वीडियोस. ओके, सो there are some points about the control and coordination as a background only. Okay, living organisms respond and react to various stimuli. Stimuli is the plural of the stimulus, like heat, light, cold, touch, pressure, pH. Okay, and so many stimuli. Okay, once again, stimuli is the plural, stimulus is the singular. Next point is control and coordination is very specific and complex in the case of animals, but very limited in plants. Plants में क्या होता है? ये बहुत लिमिटेड होता है कि क्योंकि they don't have the brain, but we all have the brain. Okay students, now control and coordination in animals. Firstly, we are going to study in the case of animals, or we can say human beings. In this chapter we will be
studying especially about the human beings. So it is brought about by two things. It is done by two things. First is the nervous system, second is the endocrine system. Nervous system composed of brain and spinal cord, and endocrine system hormones secreted by endocrine glands. There are some specialized glands. Liver is also gland, pancreas is also gland. We already studied in the chapter number 1, life process. Similarly, there are some glands also, but these are naturally named endocrine gland. And what are these, we will be studying in the coming videos. बच्चों आगे आने वाले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो endocrine gland से some chemicals निकलते हैं, and these special chemicals are known as hormones. For example, growth hormone. ओके, आपने सुना होगा थायरॉक्सिन. इसी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, यहाँ गर्दन पे यहाँ होती है थायराइड ग्लैंड, स्वेल कर जाती है. ओके, वी विल बी डिस्कसिंग इट, ओके, इन द कमिंग वीडियोस, डोंट वरी. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर डन बाय टू. एंड एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आना चाहिए बच्चों कि व्हाई देयर आर टू थिंग्स, nervous system and endocrine system. Actually endocrine system is also work under the control of brain. ठीक है, इसके अंदर ही काम करता है ये, but having some special work in special situations. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम दोनों की जरूरत पड़ती है. बिकॉज सपोज देयर इज अ मैन, आई हैव ड्रॉन हियर, दिस इज मिस्टर एक्स. ओके, और पता चला अब इनके बॉडी का क्या है बच्चों, सपोज हैविंग लीवर, देयर इज अ लीवर. नर्व सिस्टम्स या न्यूरॉन्स कैन गो इनटू द लीवर बट नॉट इनटू द लीवर सेल. फिर से, नर्व सेल खुद ही एक सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज नर्व सेल. ठीक है, यहाँ है, अभी पढ़ेंगे इसके बाद. दैट कैन नॉट एंटर इनटू द नर्व सेल, सॉरी एनी सेल. तो अगर सेल को मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ कमांड भेजना हो, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स के लिए भेजना हो कि तुम ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा दो, प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ा दो, तो जेनेटिक लेवल पे जब भेजना होगा तो नर्व सेल कैन नॉट एंटर इनटू द एनी काइंड ऑफ सेल. ये इसके बगल में रहेंगी ऐसे, ये नर्व सेल, बट दे कांट एंटर इनटू द सेल. बट हार्मोन्स कैन एंटर इनटू द सेल. हार्मोन्स क्या है तो बच्चों इसके अंदर एंटर कर जाएंगे. वंस मोर इन द समरी, नर्व सेल कैन एंटर इनटू बॉडी ऑर्गन बट कैनॉट एंटर इनटू द सेल. सेल के अंदर नहीं सकते हैं. हाँ, एक चीज और भी है, नर्व सेल से एक केमिकल वहां भी निकलता है, एसिटिल कोलिन. उसका कोलिन पार्ट अलग होकर के वो अंदर जा सकता है, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. ठीक है, कुछ लोग बोले शायद सब जाता तो है, तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं बच्चों. बट हार्मोन्स हैविंग सम स्पेशल वर्क, इसलिए दोनों की जरूरत पड़ती है. ठीक है, in the next topic we will have to study in the coming videos stimulus, response and receptor. Stimulus, response and receptor, but in the coming videos. But now we are going to just have a quick points about it, क्योंकि अभी नहीं जानेंगे तो हमें आगे पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, और we will study in detail about this one. So stimulus in single line I am telling you. Stimulus means any external or internal change. Any external or internal change is called stimulus. Response, reaction of body against the stimulus is called response. Receptor, some specialized cells. Some specialized cells, or we can say nerve ending.
ये नर्व सेल है ना, इसका एंडिंग ये हर जगह होता है, पूरी बॉडी पे होता है, हर ऑर्गन के पास होता है, आर नोन एज रिसेप्टर। ऐसे दिक्कत हुई होगी थोड़ा बहुत, ठीक है। लेट अस स्टडी विद एग्जांपल। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग राइट नाउ वीडियो। सपोज this tube light which is lighting doesn't stop working, ये काम करना बंद कर दे, तो what will happen? My eyes are there as a photoreceptor। मेरी आंखें क्या हैं? वो फोटोरिसेप्टर हैं। आंखों का कौन सा पार्ट? अंदर होती है रॉड सेल एंड कोन सेल। क्या होती है? रॉड सेल एंड कोन सेल। दे गिव me my brain a signal there is a darkness। ओके, अब मैं देख नहीं पाऊंगा और इसके रिस्पॉन्स में क्या करूंगा? ये वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, आई मे ओपन द डोर, मैं डोर भी ओपन कर सकता हूं। इफ आई गेट द प्रॉपर लाइट आई मे कंटिन्यू दिस वीडियो। सो लाइट का जाना, डार्कनेस होना, दिस इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस अंदर से भी होती है बॉडी के, जैसे भूख लगना, ये इंटरनल स्टिमुलस है। दैट इज गिविंग यू सिग्नल्स टू हैव द फूड, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या? लाइट का चले जाना, बहुत अंधेरे में रहना तो लाइट आ जाना, ठीक है। सेंट जो होती है ना, जो परफ्यूम होते हैं, वो भी क्या है? एक स्टिमुलस है, ठीक है। और तीसरा क्या बताया आपको? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स में क्या हुआ कि आपने किसी चीज को देखा और उसको जो ऑर्गन्स थे जो रिसीव किए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ थिग्मोरिसेप्टर। ऐसे देखो मैं दबा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ऐसे दबा रहा हूँ ना, देखो ये दबा रहा हूँ, तो ये क्या है? देयर इज अ थिग्मोरिसेप्टर। टच रिसेप्टर हैं, प्रेशर दे रहा हूँ तो ये प्रेशर रिसेप्टर वाले हैं। दे आर हैविंग द रिसीविंग द सिग्नल्स, वी कैन से स्टिमुलस। और यहाँ से होते 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 ये पूरा ब्रेन को जा रहे हैं। नाउ ब्रेन इज डिसाइडिंग, ठीक है, कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। सो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रिसेप्टर। आई होप यू ऑल हैव गॉट द पॉइंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज द, नाउ वी आर वर्किंग ऑन द नर्वस सिस्टम। ओके, दिस इज द नर्वस सिस्टम। ओके, सो nervous system is made up of the nerve cell. Nervous system is made up of the nerve cell or we can say neuron। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। आप न्यूरॉन देख के डर मत जाइएगा, इट इज द अदर नेम ऑफ द नर्व सेल। सो डेफिनेशन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल and functional unit of nervous system is called neuron। The smallest structural and functional unit of nervous system is called neuron। Okay, and the next point is brain and spinal cord are made up of neurons। ब्रेन और क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड किसके बने होते हैं? न्यूरॉन्स के बने होते हैं, ठीक है। और पूरे ब्रेन में दे आर, एंड वन मोर थिंग, neurons are the longest, you all can add also, neurons are the longest cell of body। सबसे लंबी बॉडी, सबसे लंबी जो सेल होती है बॉडी क्या होती है? वो न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है? वो न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। Now we are going to study this part। So न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सॉन। डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सॉन। So this is the cyton or we can say cell body। Okay, these are the dendrites which receive the stimulus। देखिए इसलिए कहा था मैं, उसको बिना पढ़े हम लोग इसको नहीं पढ़ सकते हैं। डेंड्राइट्स which receive the stimulus, ठीक है। as we put our hand into hot water, then are the ending up like this receive the
stimulus and they transfer from here to C, from here to here। और इसी तरह से फिर अगली भी होती है, ठीक है। और यहाँ से देखो एक हुई, फिर यहाँ पे देखो ऐसे, देखो इसका डेंड्राइट्स यहाँ रहेगा, फिर यहाँ आया, यहाँ तक आई, यहाँ से होगी मतलब ये देखो यहाँ तक आती है, फिर अगला यहाँ पे ऐसे ऐसे सी, ये हजारों लगी होती है। इट इज नॉट फंक्शन ऑफ वन न्यूरॉन, ठीक है, तो हजारों लाखों लगी रहती है। सेकेंड पार्ट इज द साइटोन, डेंड्राइट हो गया, सेकेंड साइटोन, थर्ड इज द एक्सॉन। सी द extended part of the cytone from here to here we can see the black one, जो blackish है ना, black दिख रहा है बच्चों, यही क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है axon, and this axon is the most crucial part of the nerve cell because अगर इसको हम इस तरह देखें, axon को हम लोग देखो ऐसे देखें, ओके। तो अच्छा, you all can just tell me the form of conduction of nerve impulse किस फॉर्म में होता है? that is electrical impulse, electrical impulse चार्जेस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, चार्ज के फॉर्म में जाते हैं, यहाँ प्लस होते हैं, प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस, इसी मेम्ब्रेन के, ये भी क्या है बच्चों, ये मेम्ब्रेन है, ये this is membrane, this is membrane, this is membrane and this is also a membrane। ये देखो ये वाली, ये ऊपर की नहीं, ब्लू वाली नहीं, ब्लैक वाली, so this is the membrane। इस membrane से क्या होता है, चारों ओर, ऊपर भी नीचे भी क्या होते हैं, प्लस साइन होते हैं in general and at the lower side negative sign, as many as plus charge as many as negative charge। प्लस माइनस क्या होते हैं, सेम इक्वल होते हैं, इन्हीं का क्या होता है, ये प्लस अंदर और ये माइनस ऊपर, above the membrane। इसी तरह से क्या होता है, ये इनका फिर कंडक्शन होता है, नर्व्स का कंडक्शन होता है इन क्लास 11, ओके। you will be taught in detail, ओके। सो यहाँ पे क्या बच्चों, ऐसे एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे अंतिम में आने पे क्या होता है यार, कन्वर्टिंग इनटू नॉब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब इज रिटन हियर एंड these axons are covered by a sheath that is known as myelin sheath, that is known as myelin sheath। myelin sheath works like that कि आप मान लो कि वायर है, वायर के ऊपर अगर प्लास्टिक की कोटिंग ना हो, ठीक है, तो द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी लोअर, अभी कैसे विल बी लोअर, उसी तरह से। और क्या करता है प्लास्टिक, प्रोवाइड द इंसुलेशन, इंसुलेट भी करता है। सेम वर्क ऑफ द माइलिन शीथ, शीथ मींस कवरिंग, सिंपल मीनिंग ऑफ द शीथ इज कवरिंग, ये कवरिंग भी देता है, ऐसे है ना, ये देखो पूरा, ये देखो, ये देखो बच्चों, अब ये है, ये डाटा केबल, इसमें क्या है, ये शीथ है ना, ये इस तरह का है, नहीं तो अंदर क्या होता है, ये पूरा वायर तो है, ठीक है। तो शीथ इज कॉल्ड माइलिन शीथ, ठीक है। तो माइलिन शीथ क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स कंडक्शन क्या करता है, बढ़ा देता है। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स, फ्रॉग, उसमें माइलिन शीथ नहीं होती है, तो क्या होता है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स इज वेरी वेरी स्लो, ठीक है, नियर अबाउट 30 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30 मीटर जा सकती है, जो रेट है उतना मीटर लंबा फ्रॉग नहीं होता है, लेकिन वो रेट कैलकुलेट किया गया है। और इन द केस ऑफ अस 130 मीटर पर सेकेंड, हम लोगों को बहुत ज्यादा इसका रेट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वो सब आगे पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या बच्चों,
myelin sheath हो गया, and somewhere this myelin sheath are not present, so there are gaps, and these gaps are known as node of Ranvier. Node of Ranvier, who and it is named as the name of the scientist who discovered it. अब डिस्कवर्ड यहाँ पे मैंने कह दिया जरूर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जिसने इसका पता लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये नोड ऑफ Ranvier बोलते हैं. दिस पर्सन या दिस बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड इट. ओके, नेक्स्ट इज द दिस माइलिन शीथ आर फॉर्म्ड. अब भाई कोई भी सेल बनती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा माइलिन शीथ होती है इन द एम्ब्रियोनिक लेवल, 1 month एम्ब्रियो, ठीक है, 10 days, इट इज फॉर्म्ड लेटर ऑन, ठीक है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ श्वान सेल. जो आप यहाँ देख रहे हो ब्लैक ब्लैक बच्चों ना, ये सब न्यूक्लियस है श्वान सेल के. श्वान सेल, दिस ऑल synthesize, या वी कैन से फॉर्म द माइलिन शीथ, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट. सो वंस मोर just have a revision. Dendrites receive the stimulus, axon transmit the stimulus. Axons क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, कंडक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, इन्हीं प्लस फॉर्म के, प्लस चार्ज के फॉर्म में, प्लस और माइनस दोनों. ओके, एंड साइटोन क्या हो गया, द होल ब्रॉड पार्ट, एंड दिस इज द न्यूक्लियस. यहाँ पे क्या है, ये बेटा इसका ये साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द निसिल्स ग्रैन्यूल. निसिल्स ग्रैन्यूल ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ग्रेनुलर फॉर्म. द रेगुलर फॉर्म ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज निसिल्स ग्रैन्यूल. ओके स्टूडेंट्स, so this is all about in this video, and in the next video we will discuss the next topic. okay, और हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं, आप लोग सभी लोग नोट्स बनाएंगे इसका, ठीक है, एज अर्लियर. मैं हट जा रहा हूँ, आप ले लीजिए, ठीक है, और आप लोग वीडियो बना करके, सॉरी नोट्स बना करके अच्छे से हमको सेंड भी करेंगे, ठीक है. ओके, so thanks for watching. Bye bye, take care.